Good afternoon, everybody. I'm Priyanshi, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch intensely. It may be due to chemicals in certain food, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in the Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incident is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but most important part is not to ignore it, and doing self medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria, its types, how we can prevent it, the kind of tests required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Prakash Agarwal. He's an MBBS, dermatology, venerology, and leprosy, and has experience of 9 years overall, 6 years as a specialist. He has completed his MBBS from NRS Medical College Hospital in 2011. MD in dermatology, venerology, and leprosy from Indian Institute of Medical Sciences and Banaras Hindu University in the year 2015. He holds a specialty in cosmetology and also is a skin specialist. He has years of experience in this field, and his skill and compassion has made tremendous difference in patient lives. He is currently practicing at Mihi Skin Clinic, Siliguri, West Bengal. A warm welcome to Dr. Prakash Agarwal. It is a pleasure, doctor, to have you with us today. And we are going to discuss on a very important topic today, which is the management of urticaria. And the first question we would like to ask you is, what is urticaria? Actually, urticaria is one type of autoimmune disease. We can call it autoimmune. In this, there is a formation of hives. It there are lots of factors causing the urticaria. So still the urticaria is not well established and well explained. Actually, there are lots of reasons. Sometimes we don't have the answer to say. So still, uh, to keep the urticaria in a proper framework, it is not possible. So it is one form of allergic reactions where there is a formation of white hives on the body, red lesions comes. In this way we can say it's urticaria. सो डॉक्टर नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी कंडीशन हो या स्किन में चेंजेस हो, वो इनिशियली समझना कि ये हो रहा है हमारी स्किन में प्रॉब्लम, वो एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो एक इंसान कैसे समझे कि उस पेशेंट को या उस इंसान को अर्टिकेरिया हो रहा है? वो इनिशियल स्टेज कैसा दिखता है? अर्टिकेरिया में क्या होगा ना कि एक व्हील फॉर्मेशन होगा और ये मल्टीपल्स हुँ, होंगे। जैसे मान लो हुँ, इंसेक्ट बाइट होता है तो उसमें जैसे एक जगह दो जगह होगा, हाँ एक हुँ, सिंगल पैच, लेकिन इसमें मल्टीपल होगा, ये रिकरेंट होगा। प्लस ये जो ओके, लास्ट करेगा जहां तक है 1 घंटे से ये लेस देन 24 आवर तक भी लास्ट कर सकता है। और ये हुँ, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और समटाइम्स क्या हुँ, होता है कि पेशेंट कोरिलेट कर पाता है कि जब भी वो कोई ऐसा फूड खाता है तो रिपीट कर जाता है। तो ये हुँ। चीजें हैं, तो इस तरीके से वो कह सकता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया। ओके। तो अभी चलिए ये तो समझ में आ गया कि इनिशियल स्टेज में ऐसा वाइट जैसे हमने कहा लीजन जैसा क्रिएट होता है या रेड स्पॉट्स जैसे होते हैं। पर इंसेक्ट बाइट पे अगर स्पेशली हम फोकस करें तो व्हाट इफ द इंसेक्ट हैज बिटन जस्ट वंस और एक ही बार उस पेशेंट को चेंज दिखा है अपने स्किन में एंड फ्यूचर में रीअकरेंस का कोई सिनेरियो भी नहीं है, क्या ऐसे केसेस भी रहते हैं? तो उस केस में पेशेंट को क्या करना चाहिए? सिंगल एपिसोड में बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि ये अर्टिकेरिया है कि इंसेक्ट बाइट है ये, या समथिंग एल्स है, हुँ, कोई ड्रग रिएक्शन है, कोई समथिंग एलर्जी है। जब तक पेशेंट फॉलो अप में या उसकी पास हिस्ट्री नहीं हो तब तक उसको हुँ, स्टैम्प करना कि ये सफरिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया और नॉट, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। राइट।
डॉक्टर, हमने ये भी सुना है कि सन से भी मतलब सूरज की हम्म। किरणों से भी अर्टिकेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है? क्योंकि बाहर तो जाना ही है और धूप तो लगना ही है। अगर ऑन अ डेली बेसिस हम देख रहे हैं वो चेंज हमारे स्किन के ऊपर, तो क्या वो इरिटेशन क्रिएट करेगा? क्या ये पेनफुल है, इचिंग है? कैसा सिनेरियो होता है? पर्टिकुलरली सन रेज़ से अगर अर्टिकेरिया हो तो? एक्चुअली जो सन से होता है उसको सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो सोलर हुँ, अर्टिकेरिया में क्या है कि यदि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है उसके लिए, तो इसमें हुँ, एक वे ये है कि या तो वो एंटी एलर्जिक जो एंटी हिस्टामिनिक है, वो जब भी जैसे हुँ, सुबह में ले ले मॉर्निंग में, और पहले ही वो सिंगल टैबलेट या वन टैबलेट टू टाइम्स लेके देखे कि उससे मैनेज हो रहा है कि नहीं। सपोज वो हुँ, टैबलेट ले रहा है उससे उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो देन क्या होती है कि जो टॉपिकल सनस्क्रीन होती है या आजकल ओरल सनस्क्रीन भी आ गई है, तो वो देते हैं। यदि उससे भी मैनेजमेंट नहीं होता है, तो बहुत सारी जो मेडिसिन होती है, जो इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करती है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है, वो फिर देनी पड़ती है। जी। डॉक्टर, ये क्रोनिक अर्टिकेरिया कैसा होता है? पेनफुल होता है? इज़ इट सफरिंग फॉर द पेशेंट? एक्चुअली एक्यूट और क्रॉनिक का एक डिमार्केशन लाइन है, जो मतलब गाइडलाइन बोलता है 6 वीक्स, कि 6 वीक्स से हुँ, कम हो तो उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। मोर देन 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो क्रॉनिक के अंदर में भी बहुत सारा सब क्लासिफिकेशन होता है, कि वो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है, कि ऑटो इम्यून इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया है, कि इंडिसिबल अर्टिकेरिया है। तो उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री समझ में आता है कि इसका क्या आगे चल के इसका ये होने वाला है, मतलब इसका आगे ये रिकरेंट होगा, रेजिस्टेंट होगा, तो वो हिस्ट्री से भी समझ में आता है। तो ये क्रोनिक अर्टिकेरिया का सिनेरियो कब क्रिएट होता है? नेग्लिजेंस की वजह से? पेशेंट के नेग्लिजेंस की वजह से? नहीं, नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलर ही मेडिसिन खाते हैं, रेगुलर सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी उनको होता है। तो एक कॉज़ नहीं हुँ, हो सकता। हाँ, ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यूएशन एक रीज़न है, मतलब हुँ, पेशेंट यदि प्रॉपर कॉम्प्लायंस फॉलो ना करे, वो तो एक रीज़न है ही। लेकिन उसके साथ ही हुँ, साथ बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट ट्रिगर नहीं समझ पाता है, कि उसको कौन-सा हुँ, चीज़ हुँ, ट्रिगर कर रहा है। हो सकता है कि जो चीज़ उसको नहीं खाना चाहिए, वो रिकरेंट खा रहा है। सपोज़ उसको एग से हुँ, एलर्जी है, तो वो एक खा रहा है बीच-बीच में, तो उससे उसको हो जाती है। बहुत पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पूरा ध्यान देते हैं, खाने बहुत चीज़ ऑफ करते हैं, उसके बाद भी होता है। तो उसमें बहुत फिर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, जिससे पता चले कि इसका और कॉज़ क्या है। लेकिन जो मेजर बहुत बार ऐसा जो मिलता है, इडियोपैथिक होता है, जिसमें क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट कितना भी टेस्ट करा ले, कुछ भी करा ले, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन ये है सिनेरियो, क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, ये भी काफ़ी पेशेंट्स में मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को नॉर्मली बस मेडिसिन ही कंटिन्यू किया जाता है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे वो सबसाइड कर जाता है। जी। डॉक्टर, अर्टिकेरिया जैसे आपने कहा कि रिअकरेंस के भी सिनेरियो रहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है करंटली फॉर अर्टिकेरिया? ट्रीटमेंट जो है वो एक तो है कि पेशेंट का पहले एज देखना है, कि एज बहुत यंग एज है, कि ये एडल्ट एज है, प्लस हुँ, कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं है। जैसे मान लो बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जी है, लेकिन साथ में लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या अदर प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्या उसका प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पेशेंट का ये है तो उसमें क्या दिया जा सकता है मेडिसिन। तो ओरल मेडिसिन है यूजुअली, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दिस का अदर कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है। जी, जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। डॉक्टर, क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए हम अगर ऑल्सो ये बताइए हमें, ये तो हमें कुछ-कुछ कॉजेज़ पता चल गए कि सन से हो सकता है, इंसेक्ट बाइट हो सकता है, खाने से हो सकता है। क्या कंटेजियस भी है, छूने से भी फैल सकता है? नहीं, कंटीजियस नहीं है ये। हेरिडिटरी है, बहुत पेशेंट्स में मिलता है कि जैसे उनके पेरेंट्स को भी अर्टिकेरिया था, बच्चों में भी वो ट्रांसमिट होता है अर्टिकेरिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है। लेकिन अर्टिकेरिया का ही एक कॉमन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको स्केबीज बोलते हैं, वो है कंटेजियस, वो भी बहुत बार पेशेंट्स लेके आते हैं। लेकिन एज सच अर्टिकेरिया इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। ओके। नाउ कमिंग
टू द प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब जिनके फैमिली हिस्ट्री में है, देखा गया है अर्टिकेरिया, उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि उन तक ना आए? एक्चुअली क्या है ना कि जैसे अर्टिकेरिया या एटोपी जो बोलते हैं, बहुत बार बहुत पेशेंट्स में ड्राई स्किन की इश्यूज रहते हैं। तो यदि मान लो बहुत ज्यादा तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन यदि मान हुँ, लीजिए उनके पेरेंट्स को किसी चीज से एलर्जी है, खाने की चीजों से, तो वो अपने बच्चों में भी वो अवॉइड कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि जैसे मुझे है तो मेरे बच्चे को भी हो सकता है एलर्जी। प्लस बहुत बार होता है कि पेशेंट, कोई-कोई पेशेंट्स को क्या होता है, मेडिसिन से एलर्जी होती है। जैसे कोई पेन किलर खाया उससे एलर्जी हो गई। तो वो कभी-कभी फैमिली में भी रन होते हैं। अगर किसी को पेन किलर से एलर्जी है, तो होता है बच्चों को भी। तो एक पास्ट हिस्ट्री यदि पता हो पेरेंट्स का कि ये चीज़ों से एलर्जी था, तो वो चीज़ हम बच्चों में भी यदि लागू कर दें स्टार्टिंग एज से, उनकी मान लो ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन का शुरू से मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर दें। तो ये सब चीज़ें यदि थोड़ा वो करें, तो शायद इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। और डॉक्टर, अगर इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया गया, तो हुँ। कैसा सिनेरियो हमें नज़र आ सकता है? अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऐसा सच तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ट्रबलिंग डिजीज है। जैसे मान लो ये बहुत ज्यादा रिकरेंट करता है, तो बहुत बार पेशेंट परेशान हो जाता है, नाइट में सो नहीं पाता है। इनफैक्ट आगे चल के साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। तो ये एक हुँ, सबसे बड़ा हुँ, प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है। इसी की एक सिमिलैरिटी जिसमें होती है अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस, वो एक मतलब थोड़ी अलग मेजर प्रॉब्लम होती है। उसमें आगे हुँ, चल के प्रॉब्लम हो सकती है। एज सच अर्टिकेरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। हाँ, लेकिन तो जैसे मान लो ऐसा एस यस, यस, बोलो, प्लीज़ बोलो। कंटिन्यू। नहीं, नहीं, आप बोलो ना, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? सो सो डॉक्टर, मतलब सपोज़ अर्टिकेरिया है पेशेंट को, और ट्रीट नहीं कर रहा है वो इंसान, तो ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो सकता है, ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं? एक्चुअली अर्टिकेरिया में ऐसा तो डिजीज मतलब एक मतलब वो और सीवियर इसका ज्यादा से ज्यादा ये अर्टिकेरिया, इसमें एक हो सकता है एंजियोइडेमा, एक कंडीशन होती है जो आगे चल के हुँ, जैसे कुछ पेशेंट में क्या होता है जिसमें अर्टिकेरिया या एंजियोइडेमा, उसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने का डर था, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, जिसमें एकाएक हुँ, पेशेंट मतलब ब्रेथलेसनेस होने लगती है, डिस्निया होने लगती है। और तो वो एक कंडीशन है एनाफाइलेक्सिस, जिसमें आपका पूरा मतलब लैरिंजियल स्वेलिंग हो जाए, आपका लिप स्वेलिंग हो जाए, तो वो एक कंडीशन है जो कि रेयर ही होती है। ज्यादातर हुँ। अर्टिकेरिया उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि ना भी ट्रीट करो, देखा गया है कि ग्रेजुअली अपने आप ठीक भी हो जाती है। ओके, ओके, ओके। बट डेफ़िनेटली ये बात सोच के हमें रहना नहीं है कि अपने आप ठीक हो जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशन जो आपको बॉदर करेगा, जो आपको इरिटेट करेगा। सो टू गेट रिड ऑफ द इरिटेशन, यू कैन विज़िट योर नियरेस्ट एक्सपर्ट एनी टाइम पॉसिबल, एंड सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्लस वी ऑलवेज़ नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो शुरुआती स्टेज में उसे रोकना हमेशा बेहतर, हम कहते हैं। मूविंग अहेड डॉक्टर, सेम टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्टिकेरिया। स्ट्रेस मेंशन किया है डॉक्टर आपने, तो क्या हो सकता है कि स्ट्रेस से भी अर्टिकेरिया हो रहा है? और अगर हो रहा है, तो वो किस प्रकार का दिखता है? कुछ अलग होता है या नॉर्मल अर्टिकेरिया में जैसे हमें दिखते हैं लीजन वैसे ही होता है? एक्चुअली क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ईच स्क्रैच साइकिल। जैसे मान लीजिए पेशेंट को मतलब एक ईच हो रही है, वो सो नहीं पा रहा है, तो वो और डिस्कम्फर्ट होगा, तो वो और ईच करेगा, तो क्या होता है बॉडी में सारे स्क्रैचेस, ड्राई स्किन, सेकेंडरी इंफेक्शन होने का डर रहता है। और वो पेशेंट मैंने हम लोग देखते हैं कि वो और ज्यादा जितने वो टेंस्ड होते हैं, जितने स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी इम्यूनिटी लेवल उतनी घट जाती है। उनमें मेडिसिन भी हुँ, उतना ही कम वर्क करता है, और उनमें डिजीज हुँ, भी बहुत टाइम लगता है ठीक होना। इसलिए हम लोग हमेशा काउंसलिंग पार्ट को भी देखते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट के साथ, कि मान लीजिए यदि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस ज्यादातर होता है कि जो लोग लंबे समय से परेशान है, जो हुँ, हुँ, एक्यूट हुँ, आए हैं हफ्ते 10 दिन, वो परेशान नहीं होते हैं। जो लंबे से एक्चुअली उनको हमेशा एक डर रहता है कि कहीं हमें कोई कैंसर ना हो, स्किन कैंसर, क्योंकि कुछ ऐसे स्किन मैलिग्नेंसी होती है जिसमें बहुत इचिंग होती है, हुँ, बहुत इचिंग हुँ, होती हुँ, है। हुँ, जैसे ओल्ड एज में यदि बहुत इचिंग है, उसका रीज़न अनएक्सप्लेन है, तो उसमें बहुत बार कोई स्किन मैलिग्नेंसी तो नहीं है। तो बहुत बार पेशेंट भी राइट, जो है
गूगल से सर्च करते हैं कि कॉजेज ऑफ जनरलाइज्ड इचिंग, तो उसमें स्किन हुँ, कैंसर लिखा रहता है। तो उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो ये चीज हम लोग को बहुत देखना पड़ता है कि कहीं पेशेंट उस एंड तक तो नहीं सोच रहा है कि मुझे मैलिग्नेंसी तो नहीं हो गई। हाँ, तो वो सब चीज को रूल आउट करना पड़ता है, प्लस पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि दिस इज ट्रीटेबल डिजीज। ये 90% केस में ये ट्रीट हो जाता है यदि आप प्रॉपरली फॉलो करो, अपना टाइमली मेडिसिन खाओ, तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाता है। तो पेशेंट कॉपरेशन, पेशेंट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट। राइट, राइट, राइट। डॉक्टर एक और बात बताइए हमें, अर्टिकेरिया ये जो स्किन में बदलाव नज़र आती है हमें, ये शरीर के किन हिस्सों में नॉर्मली हो सकता है? ये ज्यादातर एक्सपोज्ड एरिया में ज्यादा होता है, जैसे लिम्स एरिया, अपर लिम्स, लोअर लिम्स में ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभी ये फेस में या कवर्ड एरिया में भी हो सकता है। ज्यादातर ये हाथ पैरों में ही मिलते हैं। राइट। वेल, स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में हमने जाना। स्ट्रेस से एक और बात आपने कहा कि रात को अक्सर होते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है और रात को एक्टिव रहते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं, नींद की कमी होती है उन्हें, टायर्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये रात को इतना खराब क्यों हो जाता है? मतलब क्या इंसान का दिमाग कॉन्शियस रहता है उस वक़्त इसीलिए? बिल्कुल। एक्चुअली डे टाइम में क्या हम बहुत ज़्यादा मतलब कामों में व्यस्त रहते हैं, हमारा फ़ोकस चेंज रहता है, उस काम से हमें पता नहीं जी। चलता। प्लस ये देखा गया है कि हमारा जो स्टेरॉइड लेवल है, बॉडी का जो स्टेरॉइड लेवल है, वो मॉर्निंग के समय हुँ, ज़्यादा होता है। तो हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें इचिंग कम होती है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे-जैसे हम इवनिंग, नाइट होता है, तो हमारी वो बॉडी की जो अपनी इम्यूनिटी लेवल है, वो घटने लगती है। तो वो भी एक रीज़न होता है कि हम लोग, और प्लस उस समय हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं, हमारे हमारे पास काम नहीं रहता, तो उस समय हमें ज़्यादा इचिंग फील होती है। जी। जी। सो बेसिकली वही हम कह रहे हैं कि रात को आई थिंक इंसान ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, काम नहीं है इसीलिए, एंड मे बी दैट्स व्हाई ये इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है फॉर पीपल हू आर सफरिंग फ्रॉम सच इश्यूज़। यू नो व्हाट टू डू नाउ, यू हैव टू विजिट अ नियरेस्ट एक्सपर्ट और ज़्यादा डिले, ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें ये सब चीज़ें। मूविंग अहेड डॉक्टर, खान-पीन के बारे में बात करते हैं। डाइटरी प्रिकॉशंस क्या है फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया, डूज़ एंड डोंट्स? यदि फूड की बात करता हूँ कि ऐसे हर पेशेंट का अपना एक ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। जैसे ज़्यादातर जो कॉमन फूड आइटम्स जैसे एग हो गया, फिश हो गया, चिकन, मीट हो गया, तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। मशरूम हो गया, पीनट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, तो ये सब कुछ कॉमन है जो ज़्यादातर मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी पेशेंट्स में मतलब लेकिन हर पेशेंट को हर चीज़ों से नहीं होगा। सपोज उसको एग से है तो जरूरी नहीं है उसको बाकी चीजों से एलर्जी हो। तो हम लोग कॉमन बता देते कि ये ज्यादातर लोगों में होता है, आप पहले इनमें से फाइंड आउट करो, इनमें से यदि कोई चीज है तो आप करो। अदरवाइज आप और भी जो है मतलब अपने आप पता करते हो। नहीं तो आजकल फूड एलर्जी टेस्ट भी होने लगी है, जिससे भी एक रफ आइडिया मिलता है कि क्या चीज से एलर्जी हो सकती है। राइट, राइट। सो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने जाना है अर्टिकेरिया से रिलेटेड, कि आपको आपके बॉडी को समझना है। आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, एंड देन वन्स यू आइडेंटिफ़ाई द रूट कॉज़ ऑफ इट, यू हैव टू विज़िट योर डॉक्टर। शायद बहुत ज़्यादा आसान हो जाए और आपको उतना ज़्यादा तकलीफ ना हो। सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी in the case of urticaria is very much important. We are in discussion with Dr. प्रकाश अग्रवाल और आज हम बात कर रहे हैं अर्टिकेरिया से संबंधित चीज़ों के बारे में, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर, कोविड के बारे में अगर बात करें हम, तो क्या कोविड से भी अर्टिकेरिया हो सकती है? कोविड के समय ने हम लोग ने देखा था कि स्किन रैशेस काफी आए थे। तो अभी ये हुँ, वेल स्टेब्लिश नहीं हुआ है कि कोविड के कारण अर्टिकेरिया होता है, बट वी कैन कीप वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। क्योंकि जब हम इन्फेक्शन एटियोलॉजी में जाते हैं, इन्फेक्शियस व्हाट आर द इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ, तो हम लोग इसमें वायरल भी बोलते हैं। तो कोरोना वी हुँ, कैन कीप कोरोना आल्सो, एंड वी हैव सीन आल्सो दैट ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, इनफैक्ट मैं बोलूंगा वैक्सीनेशन के बाद भी पेशेंट को अर्टिकेरियल रैशेस आते थे। तो इन बोथ हुँ। वे देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। राइट, राइट।
यस, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, अर्टिकेरिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर, ये लैब टेस्ट ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली यदि पेशेंट एक्यूट है, मतलब यंग एज है, और जहाँ लग रहा है कि मतलब क्लियर कट है, तो यूजुअली हम लोग भी ब्लड टेस्ट के लिए नहीं जाते। लेकिन जहाँ हमें लग रहा है ये क्रॉनिक है, रिकरेंट है, या पेशेंट्स को हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है, तो या कोई कोमॉर्बिडिटी लगे, तब भी हम लोग वी डू सम ब्लड टेस्ट जो जरूरी होते हैं। और या कभी हमें हमें एटियोलॉजी फाइंड आउट करना हो, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट करते हैं। राइट, राइट। वेल डॉक्टर, मैं देख पा रही हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। पहला सवाल आ रहा है पूजा से, जो पूछती है, व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन अर्टिकेरिया? इम्यून सिस्टम का तो देखो, आज ना ही खाली अर्टिकेरिया, आज जितनी भी डिजीज है, सब में इम्यून सिस्टम हम्म, का रोल है। आज आप कोई भी हम्म, इम्यून सिस्टम हमारा यदि वीक होता है, तो वी कैन सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज। आज हम लोगों की जितनी भी स्किन डिजीज होती है, ज्यादातर डिजीजेस सारे इम्यून रिलेटेड होती है। तो यदि आपका इम्यून कम होगा, इम्यून सिस्टम वीक है, या आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, दोनों ही वे में आप सफर करोगे। आप हाइपर एक्टिव है आपकी इम्यून सिस्टम, तब उससे अलग प्रॉब्लम होती है। जब आपकी स्किन, आपकी इम्यून सिस्टम हाइपो ये है, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इन बोथ वे इम्यून सिस्टम कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। राइट, राइट। वेल पूजा, आई बिलीव यू गॉट योर आंसर, एंड ऑल्सो वी बिलीव कि आपका जो स्किन है वो वैसा ही दिखता है जैसा आपका शरीर अंदर से है। सो बेसिकली इट एक्ट्स लाइक ए मिरर। आप जैसा खाएंगे, जैसा लाइफस्टाइल आपका होगा, वैसा ही आप दिखेंगे। सो ईट वेल। इम्यूनिटी के बारे में अगर हम बात करें डॉक्टर, क्या क्या खाने हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी? इम्यूनिटी के लिए कि आप जितना जैसे हाइड्रेशन, पानी पियो जितना से ज्यादा, जंक फूड आप अवॉइड करो। अभी हम्म, जितना आप मतलब रफेजेस जितना खाओ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जितना ले सकते हो, ये सब लेने से इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव होती है। प्लस आप प्रॉपरली स्लीप लो, 8 घंटे की स्लीप लो, आप एक्सरसाइजेस करो। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती है। जी, जी। वेल, ऑफ कोर्स अ हेल्दी डाइट, वही खाइए जो हमेशा से खाते आए हैं। बेसिक खाना, बेसिक घर का खाना। वी ऑलवेज से कि बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर का खाना खाइए, नॉर्मल दाल चावल खाइए, और थोड़ा सा बाहरी पैकेट फूड, ये सब चीजों से दूर रहिए। ऑफ कोर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सोना टाइम पे बहुत जरूरी है, और वर्कआउट किसी भी फॉर्म में हो, योगा हो, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चाहे चाहे आप कार्डियो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, include that in your everyday routine. Life would be much easier and also stress free, क्योंकि हम आज डॉक्टर से सुन रहे हैं कि स्ट्रेस का रिलेशन बहुत ज्यादा है हर किसी चीज के साथ। कोई भी बदलाव हमारे शरीर में आ रहा है, स्ट्रेस से जो होता है वो बीमारी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई स्टेइंग स्ट्रेस फ्री। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्टिकेरिया टुडे। अगला सवाल जो आ रहा है डॉक्टर यश पूछते हैं, हाउ कॉमन इज अर्टिकेरिया इन चिल्ड्रन? In children, urticaria is not so much common as compared to the adult. So मैं यदि मैं बोलूँ कि कॉमन के हिसाब से, तो दिस इज नॉट मोर कॉमन। उन बच्चों में ज्यादातर इंसेक्ट बाइट रिएक्शन बहुत होते हैं, जिसको हम लोग पेपुलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। उसको आप अर्टिकेरिया में भी रख सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली अलग एंटिटी है, लेकिन मोर लेस सिमिलर टू अर्टिकेरिया होता है। उसमें क्या, ज्यादातर बच्चों को मॉस्किटो बाइट से एक एलर्जी टाइप की हो जाती है। तो ये कंडीशन है जिसको हम लोग पेपुलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो वो बच्चों में ज्यादा कॉमन करता है, लेकिन बड़ों में जो होती है वो अलग इटियोलॉजी के कारण होती है। तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कुछ अलग होते हैं, या सेम काइंड पेपुलर ऑफ ट्रीटमेंट जैसे अर्टिकेरिया? मैनेजमेंट तो जैसे एंटी एलर्जिक, जो एंटी हिस्टामिन की, वही देना होता है। इसमें मेन होता है कि जैसे बच्चों को जैसे बार बार इंसेक्ट बाइट रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें फुल स्लीव क्लोथ पहनना है। जो मॉस्किटो रिपेलेंट कुछ क्रीम आती है वो लगा सकते हैं। और मतलब जो कभी कभी बहुत ज्यादा इचिंग हो या रैशेस हो गया हो, तो उसमें जो टॉपिकल स्टेरॉइड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन होती है, वो एसओएस, जैसे कभी जब भी ज्यादा हो तो आप 4 to 5 डेज लगा के इसको स्विच ऑफ कर सकते हो। और यदि लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, इसकी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। देन
ही कैन सजेस्ट सम मोर मेडिसिन सो दैट, बट राइट। ये अपने आप ठीक होता है, लेकिन ये यूजुअली प्यूबर्टी के बाद ही ठीक होता है। तो बिफोर प्यूबर्टी यूजुअली ये रिलैप्सिंग कंडीशन है, तो इसमें प्रिवेंशन हम्म इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दी। हम्म। राइट। डॉक्टर, क्या कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन से भी अर्टिकेरिया ट्रिगर हो सकता है या कॉज हो सकता है? बिल्कुल, पेन किलर्स जो आज के डे में नॉर्मली लोग इतने पेन किलर्स खाते हैं विदाउट नोइंग, तो पेन किलर्स हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स ग्रुप होते हैं जैसे पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, उससे मतलब रैशेस हो सकते हैं। और कभी-कभी कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, उससे मतलब इचिंग हो सकती है। तो कुछ मेडिकेशन है जिससे मतलब रैशेस आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज पेन किलर्स। तो इनफैक्ट यदि राइट, कोई राइट। पेशेंट अर्टिकेरिया का है ऑलरेडी और उसको मान लो फीवर आता है, तो वी यूजुअली आस्क कि यदि बहुत ज़रूरी ना हो, तो आप पेन किलर हुँ, अवॉइड करो। यदि आप पेन किलर लेते रहोगे, तो आपका डिज़ीज़ ट्रिगर आउट हो जाएगा। जी, जी। सो नाउ यू नो कि चॉकलेट्स की तरह, टॉफ़ीज़ की तरह पेन किलर्स नहीं खाना है। ओनली एट द सजेशन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपर्ट यू नीड टू हैव इट। मूविंग अहेड डॉक्टर, हमें पता है कि डायबिटीज़ एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और हर बीमारी को वर्स करता है वो। डायबिटिक पेशेंट्स में अर्टिकेरिया किस प्रकार का दिखता है? क्या क्योर होने में थोड़ा-सा तकलीफ होता है उनके लिए, थोड़ा ज़्यादा मेबी? डायबिटिक पेशेंट में जी। डायबिटिक पेशेंट में तो आप देखो कोई भी डिजीज़ हो, डायबिटिक में कोई भी स्किन लीजन भी होता है, तो उसमें भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात क्या है, हुँ, कभी-कभी ड्रग इंटरैक्शन का भी डर रहता है कि जैसे मान लो वो पेशेंट ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन ले रहा है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कोई ऐसी मेडिसिन ना दे, जिससे वो ड्रग इंटरैक्शन हो। तो वो चीज़ को ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है डायबिटिक पेशेंट में ठीक करना। अदरवाइज़ दे आर आल्सो ट्रीटेबल। ओके। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एनी स्पेसिफिक डूज़ एंड डोंट्स? सेम है कि एक्चुअली डायबिटीज के लिए तो जो उनका जो अपना डायबिटीज के लिए जो डूज एंड डोंट है वो फॉलो करना हुँ, है। अदरवाइज जो कॉमन नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए डूज एंड डोंट है, सेम उनके लिए भी है। जी, जी। डॉक्टर, हमें ये बताइए कि सपोज़ पेशेंट को फेशियल एरिया में अर्टिकेरिया हो रहा है और समय के साथ आजकल हमें स्किन केयर का महत्व बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है कि कितना ज़रूरी है स्किन केयर। तो उनके लिए स्किन केयर जो रेगुलर वो लोग करते हैं वो क्या सेफ होगा? आजकल बहुत सारे पेप्टाइड्स, रेटिनॉल ऑयल, विटामिन सी ये सब बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल सभी। तो क्या ये सब यूज़ करना सही होगा और अगर नहीं होगा तो क्या बेसिक स्किन केयर वो लोग यूज़ कर सकते हैं? एक तो क्या है कि जैसे फेस से अटैच्ड है हमारा स्कैल्प है हमारा हेयर, तो आजकल हेयर डाई हुँ, से बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो पहला तो मैं हुँ, बोलूँगा डाई से आप मतलब आप पूरा स्पेसिफिक रहो। यदि आपको डाई से एलर्जी होता है तो कुछ मेडिकेटेड हेयर डाई आती है जिसमें आपका अमोनिया, पीपीडी या पेरोक्साइड फ्री होता है। तो आप उस टाइप की डाई यूज़ कर सकते हो। आते हैं फेस पे, फेस पे यूज़ुअली क्या होता है ना कि आप कोई एक ब्रांड फिक्स कर लो। बार-बार चेंज करने से क्या होता है हर अपनी ब्रांड में अलग-अलग मॉलिक्यूल जी, यूज़ होता है। तो आप यदि डिफरेंट ट्राई आउट करोगे तो हो सकता है कभी आप ट्रबल में पड़ सकते हो। तो इसलिए आपको जो मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जिनका फीडबैक अच्छा है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डॉक्टर का हेल्प ले सकते हो। उनसे पूछ सकते हो कि हमारी स्किन क्योंकि स्किन के टाइप से आपको लगाना है। जैसे आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई मॉइस्चराइज़र लगाना है, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब से लगाना है। इस हिसाब से आपको समझना होगा और जैसे मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन और फेस वॉश भी उसकी के अकॉर्डिंग मतलब आपका स्किन टाइप कैसा है, आपका स्किन का टोन कैसा है, उसी के हिसाब से आपको यूज़ करना है और वो भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 1 से 2 फिक्स रखना है, वही कंटिन्यू करना है। जी। डॉक्टर, व्हाट अबाउट मेकअप? स्पेशली फॉर वुमेन आजकल तो सभी मेकअप यूज़ करते हैं। वी कांट स्पेसिफिकली से कि इस ये जेंडर ज़्यादा मेकअप यूज़ करता है। बहुत लोगों की प्रोफेशन में भी ऑन अ रेगुलर बेसिस मेकअप यूज़ करना पड़ता है इनको। स्पीकिंग अबाउट मेकअप अगेन, फेशियल एरिया में जो अर्टिकेरिया फेस कर रहे हैं, विल मेकअप बी सेफ फॉर देम टू यूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस? मेकअप यदि करना है तो बहुत लाइट मेकअप करना चाहिए और दूसरी बात क्या है कि पहले आप एक मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर मेकअप लगाओ
और हुँ, जितना हुँ, कम पीरियड तक आप मेकअप रखो तो वो अच्छा है। जैसे आप मान लो रात में तो पूरा मेकअप को रिमूव करके सो, और जब भी मेकअप को रिमूव करे तो कोई जेंटल क्लींजर यूज करो, कोई हार्श फेस हुँ। वॉश ये सब ना यूज करके जेंटल क्लींजर, तो ये आप कर सकते हो। जी। डॉक्टर हमें एक और चीज़ बताइए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस सो फार अर्टिकेरिया का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? आपके एक्सपीरियंस वर्स्ट के हिसाब से आपने क्या देखा है आज तक का सबसे वर्स्ट केस? वर्स्ट केस तो यही होता है कि इतनी इचिंग होती है, इतनी रैशेस आती है कि ओरल नहीं तो तब फिर हम लोग को इंजेक्टेबल्स में जाना पड़ता है, इनफैक्ट एडमिट करना पड़ता है पेशेंट्स को। तो यही वर्स्ट है, हुँ, या पेशेंट को कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाए तो एक वर्स्ट कंडीशन अदरवाइज दे आर इजीली मैनेजेबल एट होम आल्सो। right, right. Well, today we are in discussion with Dr. Prakash Agarwal, and he is definitely bringing a sign of relief for everybody. क्योंकि ये पूरा कंडीशन डॉक्टर इतना इजीली बोल रहे हैं, आई थिंक हम सभी को सुन के एक राहत तो मिल रही होगी कि कुछ भी हो, इट्स ट्रीटेबल, इट्स क्योरेबल। ऐसे भी केसेस रहते हैं जहां अपने आप से ठीक हो जाती है। डॉक्टर ने आज मेंशन किया ये चीज, सो ये एक बहुत ही शांति लाने वाली बात है। तो स्ट्रेस बिल्कुल स्ट्रेस से दूर रहना है आप लोग को, स्पेशली व्हेन वी हैव सच डॉक्टर्स अराउंड अस। डॉक्टर एक और सवाल आ रहा है फिरोज खान से, पूछते हैं व्हाट आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स फॉर अर्टिकेरिया? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है वो हम लोग यूज हम्म, करते हैं। और फिर यदि सिंगल डोज से नहीं मैनेज होता है वी कैन डू गो फॉर अप डोजिंग टिल 4 टाइम्स। हम्म, यदि उससे भी नहीं मैनेज होता है तो फिर दे आर अदर सेकेंड लाइन थर्ड लाइन ड्रग्स, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। I believe Firoz, you have got your answer already. Um we are in discussion with Doctor today. आज हम जान रहे हैं अर्टिकेरिया के बारे में और आज हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिले है रिगार्डिंग अर्टिकेरिया। वी आर आल्सो ग्लैड कि काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स आपने पूछा है डॉक्टर से। डॉक्टर बिफोर वी टेक अ लीव टुडे, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स हु हैज वॉच्ड अस सो फार? टेक होम मैसेज यही है कि यदि आप अर्टिकेरिया से परेशान हो तो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि दवा की भी एक डोज का एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है कि आपको कौन सी दवा कैसी लेनी है। कुछ दवा होती है जो एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, कुछ दवा होती है जो रात में लेनी होती है, तो वो आपको डॉक्टर से ही समझना पड़ेगा। प्लस ना ही अपने आप बंद करना है, क्योंकि वो टेपर करके बंद किया था। यदि आप सडनली बंद करते हो तो बहुत चांसेस है वो हम्म, रिलैप्स कर जाए। इसलिए आप डॉक्टर के गाइडेंस में अपना इलाज कराओ, वो जैसे-जैसे बताते हैं उनको फ़ॉलो करो, तो ग्रेजुअली ये ठीक हो जाता है। राइट। बेसिकली चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है हमारे लिए अगर हम उस तरीके से उससे डील करते हैं तो क्योंकि इतना स्ट्रेस हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आधा स्ट्रेस हमारे डॉक्टर्स ले लेते हैं, पर आप पता नहीं क्यों कंसिडर नहीं करते हैं। प्लीज़ कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेने से पहले, केमिस्ट के पास जाने से पहले किसी भी इश्यू के लिए आप डॉक्टर के पास जाएँ पहले। जो उस चीज़ को लेके स्टडी कर रहे हैं उनके पास जाए, जिनके स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिस्ट है ये सब चीज़ों में, उनके पास जाए, ना कि केमिस्ट के पास, ना कि पड़ोसी की दवाई देख के खुद लगा ले। डोंट डू दैट। डॉक्टर एक और सवाल आ रहा है कृति कपूर से जो पूछती है, कैन अर्टिकेरिया बी ट्रिगर्ड बाय एक्सपोज़र टू सनलाइट? हाँ, तो जिनका जैसे सोलर अर्टिकेरिया है या कोलिनर्जिक हुँ, अर्टिकेरिया जिनको गर्मी से होती है, तो वो पेशेंट होते हैं, हुँ, नॉट एवरी पेशेंट। मान लो किसी को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया है, किसी को पानी से एलर्जी है या किसी को खाने से, तो वो यदि सन में जाए तो उससे वो ट्रिगर नहीं होगा। तो नॉट एवरी पेशेंट विल गेट ट्रिगर्ड विद सोलर सन। जिनका सोलर अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है या जिनको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया जिसे स्वेटिंग से प्रॉब्लम होता है, वो यदि धूप में जाते हैं, दे कैन गेट ट्रिगर्ड। राइट। वेल it was a wonderful discussion with you, doctor. We got to learn a lot from you. I believe आप सभी के सवालों के जवाब आज मिल चुके हैं regarding urticaria, and that was Dr. Prakash Agarwal for us. Thank you so much, doctor, for your valuable time. It has been a very informative session for all our viewers today, and I know that I'm sure they will be using the information
to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case they have it, now they know what to do. कैसे अपने symptoms समझें और कैसे self medication की ओर ना जाए, अभी हमारे viewers को ये तो पता चल गया है. So it was great to hear from you, doctor, once again, and we look forward to many more such session in coming time. And thank you, viewers, for your excellent participation. For more update and information about such session, uh, आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है हमारे एफबी पेज को, ऑल अबाउट स्किन वेलबिंग. वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन ट्विटर, Instagram, and YouTube. Thank you. Stay safe and stay healthy.